Welcome back. We were doing the chapter internal trade, right? And in the previous class, I had done the summary of the chapter which tells you कि any trade यानी कि चीज को खरीद कर बेचना, anything which is done within the boundary of a domestic market, that's called as internal trade. एंड फिर हम लोगों ने इंटरनल ट्रेड के अंदर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स पढ़ा, their services to different segments, yani ki wholesaler is the link between the manufacturer and the retailer. So what are the benefits he give to both of them? Retailer is the chain between the wholesaler and the consumer, so what are the benefits he gives to them? And then the different kinds of retail matlab ki business which is available in our country. So today I'm starting the chapter along with NCERT. As per your syllabus, which I had already shared, you have the meaning, then types of internal trade, their services that they are giving to the wholesaler, to manufacturers and retailers, services of retailers, types of retailers, small scale and large scale retailers, yani ki multiple and departmental shopping, and last but not the least, you have the chapter, the one which is GST. This is there in your syllabus. तो हमें पता है कि राइट फ्रॉम हम लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए भी वी गो टू द मार्केट, वी डोंट गो टू द मैन्युफैक्चरर को कि हमारा एक पेन खत्म हो गया तो एक मैन्युफैक्चर करके दो, नो. when we are मतलब कि finished off with our things, घर के अंदर दाल चावल कुछ भी खत्म होता है, सब्जी खत्म हो जाती है, या फिर हमारा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो वी गो टू द शॉप, वी डोंट गो टू द मैन्युफैक्चरर. तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, इससे कंज्यूमर तक का जो बीच का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इनको हम लोग अपनी भाषा में वी कॉल इट एज व्हाट वी से, मतलब इन योर सप्लाई चेन or distribution channel. Please do remember these words, class 11. We call it either as a supply chain or distribution channel. तो सप्लाई चेन मतलब हमारा जो मैन्युफैक्चरर है उसको मैन्युफैक्चर करता है और हम इसको कंज्यूम करते हैं, तो इनके बीच में देयर आर पीपल हु विल बी ब्रिंगिंग दीज आइटम्स टुवर्ड्स अस. तो उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, एंड जो इन्वॉल्व होते हैं वो उसे खरीद कर आगे बेचते हैं, एंड दैट इज वेयर द वर्ड ट्रेड कम्स. This trade refers to the buying and selling of goods and services with objective of earning profit. That's a simple thing. Anything. Trade can be internal, international. Mankind has been engaged in trading in some or the other form. For example, even पहले जमाने में भी लोग क्या करते थे, मतलब कि पेड़ों से चीजों को लेकर लोगों तक बेचते थे. That was also trade. वहां पर ये था कि मतलब the people were directly involved. हंटिंग करते थे, पोचिंग करते थे, उनके जो बोन्स मिलते थे या फिर जो उनको मतलब कि हाथी के जो दांत मिलते थे उनको बेचते थे. दैट वाज आल्सो ट्रेड. The importance of trade in modern times has increased as new products are developed each day and they are available for the consumption. No individual or country can claim to be self-sufficient in producing all the goods and services. Even though हम कहते हैं make in India, we are not self-sufficient. Definitely उससे related कुछ ना कुछ we need from outside. Directly or indirectly we require from outside. Thus, each one is engaged what is in producing and what is best suited to produce and exchanging them. On the basis of geographical location, trade को हम करते हैं internal and external. एक्सटर्नल आपका इंटरनेशनल इंट्रोपोर्ट वो आ जाता है, एंड इंटरनल ट्रेड हमारा है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ट्रेड विच टेक्स प्लेस, दिस इज आपका 1 मार्कर क्वेश्चन. दिस विल बी योर 1 मार्कर क्वेश्चन कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2.
Trade which is taking place within a country is called as internal. Trade between two or more country is called as external. Already हम ये चीज कर चुके हैं. So now what is internal trade? Buying and selling the goods and services within the boundary of a nation are referred to as internal trade. Whether the products are purchased from a neighborhood shop or a central market or a departmental or a mall or even from door-to-day sales or from an exhibition, all these are internal trade as the goods are purchased from an individual or establishment within a country. No custom duty, no import duty is levied on such trades. हाँ, इसके लिए हम डालते हैं अपना सेल्स टैक्स, जीएसटी, ये हमारा है. इसमें हमारे कस्टम ड्यूटीज नहीं डलते हैं. इसके अंदर हमारे इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं होते बिकॉज वी आर नॉट इंपोर्टिंग. हम सिर्फ उस चीज को खरीद कर बेच रहे हैं. अब बेच रहे हैं, इट मे बी दैट आई एम हैविंग अ डिपार्टमेंटल स्टोर. आई एम गोइंग फ्रॉम वन हाउस टू अनदर. आई एम हैविंग अ लोकल शॉप. किसी भी तरीके से. Generally, payment has to be made in the legal tender of the country or any other acceptable currency. क्योंकि विद इन द कंट्री है तो हम तो वही, हमारे यहाँ पर जो चल रहा है वही हम चलाएंगे. दैट मे बी नेचुरल है कि जो हमारा मतलब इवन कैश भी दे रहे हैं तो वो हम इंडियन रुपी में दे रहे हैं. हम डिजिटल पेमेंट देंगे तो भी इंडियन रुपी में ही दे रहे हैं. Internal trade further can be classified into two broad categories, that is wholesale and retail. Generally for products which are to be distributed to a large number of buyers who are located over a wide geographical area, it becomes very difficult for the producers to reach all the consumers or users directly. अब भाई जैसे for example there are certain products which are not produced within or immediately near our areas. अगर आपको 10th स्टैंडर्ड का मैन्युफैक्चरिंग याद हो तो हमने कहा था कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं ना, नॉर्मली दे आर क्लोज टू द मार्केट्स एंड दे आर क्लोज टू द एरिया जहां उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जूट. अगर हम लोग जो है जूट प्रोडक्ट्स का लेते हैं तो नाउ जूट जो है दैट इज आपका अवेलेबल, मतलब बेसिकली जूट का जो रॉ मटेरियल है वो आपका बांग्लादेश या फिर वेस्ट बंगाल है इंडिया के अंदर. नाउ वेस्ट बंगाल में आपका जूट है एंड वहीं पर आसपास में जो है सामान बनता है. तो नाउ हाउ डू यू हैव दोस जूट बैग्स? समवन उन जूट बैग्स को वहां से खरीदता है एंड देन ही कीप्स इट इन हिज और हर लोकल शॉप्स. क्योंकि जो जूट बैग एक्चुअली बना रहा है वो हर एक इंसान तक नहीं पहुंच सकता है. मे बी उसके आसपास के एरिया में वो बेच सकता है, मे बी टू सम एक्सटेंट टू सम अदर एरिया वो बेच सकता है, बट नॉट टू एवरी एरिया. एज आई सेड आपका वेस्ट बंगाल है तो हो सकता है वेस्ट बंगाल है तो उड़ीसा में बेच सकता है, झारखंड में बेच सकता है. लेकिन इफ यू से केरला में बेचना है, तमिलनाडु में बेचना है या फिर महाराष्ट्र में बेचना है, then it becomes difficult. So there is some middleman. For example, if vegetable oil or bathing soap or salt produced in a factory or in any part of country are to reach millions of people, this will be with the help of wholesalers and retailers. अब एक मतलब कि किलो का जो आटा है that cannot reach a consumer directly from the factory. Purchase and sales of goods and services in large quantities for the purpose of resale. This word you need to understand. For the purpose of resale और intermediate मतलब उसे यूज करके कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए खरीदते हैं, उसको हम होलसेल बोलते हैं. होल मतलब पूरा, थोक. On the other hand, sales and purchase of goods in relatively small quantities ultimately to the consumer is referred as retail. हम जितने भी सामान खरीदते हैं normally we buy from the retail. हाँ, yes, due to the internet right now we are having one channel जिसके अंदर उन्होंने 0 channels कर दिए हैं
ड्यू टू द व्हाट यू कॉल एज सोशल नेटवर्किंग आपके, देर आर सर्टेन एरियाज जहां पर जीरो चैनल है, जहां मैन्युफैक्चरर सीधा ही हम लोगों को दे रहा है, बट देन इट इज इन ओनली पॉकेट्स। मतलब वो उसका जो वो है उसकी जो मतलब व्हाट यू के क्वांटिटी जो है या फिर नंबर ऑफ है वो कम है, दे आर लेस। Traders dealing in wholesale are called as wholesale traders and others retailers. Both are marketing intermediaries who perform very useful functions in the process of exchange. इनको ही हम लोग बच्चा ऊपर जो मैंने आपको बताया था सप्लाई चेन, तो दे आर पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन, यानी कि आपका जो सप्लाई हो रहा है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर्स, दे आर द, इनका बीच का रोल होता है। इंटरनल ट्रेड और मतलब कि aims at equitable distribution of goods within a nation speedily and at a reasonable rate। हम लोग अभी तो इंटरनल को ही कर रहे हैं ना, इसीलिए। So now wholesaling means it is concerned with activities of those persons or those establishment, मतलब those companies। हम उनको कंपनी इसलिए नहीं बोलते हैं बच्चे क्योंकि कंपनी एक प्रॉपर फॉर्म होता है। एन एस्टैब्लिशमेंट का मतलब हो जाता है दोस बिजनेस एरियाज जो आगे रिटेलर को या मर्चेंट्स को या इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल यूजर्स को देते हैं, बट हु डू नॉट सेल इन सिग्निफिकेंट अमाउंट टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। मतलब ये लोग कंज्यूमर्स को नॉर्मली सेल आउट नहीं करते। ये बड़ी मात्रा में जो होलसेलर्स होते हैं ये लोग बड़ी मात्रा में दे बाय इट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड दे सेल इट टू दोज पीपल हु आर हु रिक्वायर इट। एंड जो रिटेलर होता है वो थर्ड है, यानी कि मैन्युफैक्चरर इज द फर्स्ट, सेकेंड इज द होलसेलर, थर्ड इज द रिटेलर एंड फोर्थ इज द कंज्यूमर। ये एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इनमें बीच में और भी आते हैं, हमें ये नहीं करना। होलसेलर serve as an important link between manufacturers and retailers। इन दोनों के बीच की वो कड़ी है। They enable the producers not only reach number of buy, ये मैंने आपको पॉइंट्स में अपने नोट्स में करवाया था। दे आर मतलब कि व्हाट आर द सर्विसेज जो ये मतलब कि दे प्रोवाइडेड, ये वो है, these are the services that they provide। They enable the producers not only to reach large number of buyers spread over a wide geographical area, क्योंकि एक होलसेलर के नीचे 100 रिटेलर्स होते हैं। अब मान लो 100 रिटेलर्स 100 अलग अलग जगहों पर हैं, तो इसका मतलब 100 जगहों को एक होलसेलर ने कवर किया है, तो एक मैन्युफैक्चरर के पास उतना एरिया कवर हुआ है। But also perform variety of function in the process of distribution of goods, and they take the title of the goods and bear the business risk by purchasing and selling the goods in their own name। वो लोग अपने नाम से खरीदते हैं, आगे बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो राइस होते हैं, चावल होते हैं, दैट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल। some of them are directly manufactured but some of them are, अगर आप लोग वहां पे जाओगे, if you go to खारी बौली, दिल्ली के अंदर if you go to खारी बौली के अंदर you can find bories of rice and normally these rice are bought by the wholesalers। वो होलसेलर मार्केट है वो आपका, और वहां से ये लोग जो है चावल को दे सेल आउट टू डिफरेंट आउटलेट्स, टू डिफरेंट रिटेलर्स। अगर आप कभी मॉल वगैरह जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो आप वहां पर देखोगे इंडिया गेट, चार मीनार, फॉर्च्यून, ये तो ब्रांड्स है। एंड देन आप जिस मतलब कि रिटेल आउटलेट में गए हो, उनका अपना ब्रांड भी हो सकता है, लाइक मतलब इफ यू गो टू रिलायंस, उनका अपना होता है। उसके अलावा आप देखोगे वहां पर बड़े बड़े से आपके जो है बर्तनों में चावल रखे हुए होते हैं, लूज। ये जो लूज होते हैं ना, ये होलसेलर्स बेचते हैं इन रिटेलर्स को। ये जो लूज होते हैं ये होलसेलर्स अपने नाम से खरीद कर बेचते हैं। दे अंडरटेक दे परचेज इन बल्क, पूरा बल्क में लेते हैं, एंड सेल इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स और इंडस्ट्रियल यूजर्स, जिसको जितना चाहिए, क्योंकि एक रिटेलर बहुत सारी चीजों को रखता है तो वो कम कम मात्रा में खरीदेगा।
They undertake various activities such as grading of product, packing into smaller lots, storage, transportation, promotion, collection of market information, then collection of small and scattered orders of retailers and distribution of supplies to them. यानी कि रिटेलर से पूरे के पूरा सारा का सारा डिटेल लेते हैं, किसको क्या जरूरत है. देन दे पैक इट इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज, क्योंकि वो लोग तो भर के लाते हैं, दैट्स ऑन अ लार्जर एरिया. उनका जो स्टोरेज होता है वो अलग होता है. उसको छोटे छोटे पैकेट्स में करना, उसको ग्रेड करना. ना व्हाट इज ग्रेडिंग? दो इट इज नॉट राइट नाउ फॉर यू, इट इज ओनली इन 12th स्टैंडर्ड. ग्रेडिंग का मतलब है चावल है, मैं राइस का एग्जांपल ले रही हूँ तो मैं राइस ही लेकर चल रही हूँ. इफ यू नो नहीं आता मम्मी से आज पूछ लेना. चावल के अंदर ही हमारे अलग अलग चावल आते हैं. वी हैव द परिमल, वी हैव बासमती. नाउ अंडर बासमती वी हैव दबर, वी हैव द लॉन्ग ग्रेन, वी हैव मतलब कि इसमें अलग अलग बासमती आते हैं, मोगरा, राइट. तो ये जो मैंने बोला दबर है या लौंग है या मोगरा है, ये हमारा ग्रेडिंग है. ये सब कुछ बासमती है, चावल बासमती है, लेकिन जो दबर होता है वो देखने में मोतियों जैसा लगता है लेकिन वो खिल जाता है. लौंग वाले वो होते हैं जो हम बिरयानी वगैरह में यूज करते हैं, और मोगरा जो होता है वो टूटा हुआ होता है. तो दे ग्रेड इट इनटू डिफरेंट वन, एंड देन डिफरेंट रिटेलर्स जो अपनी डिमांड बताते हैं उनको देते हैं. They also relieve the retailers of maintaining large stock of articles and extend credit facilities. ये सिर्फ ये रिटेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं. आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ बुक्स इन द लास्ट क्लास. मैंने आपको बुक्स का एग्जांपल दिया था कि if they are not able to sell, they may take it back, and if they are able to sell after 3 months, they pay the amount. ये क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं. एंड इवन दे गिव दिस क्रेडिट फैसिलिटी टू द मैन्युफैक्चरर्स आल्सो, उनको एडवांस में देते हैं. most of the functions performed by wholesalers are such which cannot be eliminated. If there are no wholesalers, these functions shall be performed either by manufacturer or retailer. So now let us come to the services that they give separately. ये जो ऊपर था ये functions ही था, इसी को इन्होंने यहाँ पर points में बना दिया. They provide services to the manufacturers also, they provide the services to the retailers also. So first let us understand what they give to manufacturer. Facilitate, जो produce कर रहा है उसको, facilitate large scale production. Now what does that mean? यानी कि रिटेलर से वो लोग जो है डिमांड लेते हैं. ये वाला बोलता है मुझे 100 क्विंटल चाहिए, वो कहता है 50 चाहिए, वो कहता है, यानी कि इन सब के जो है टोटल मिलाकर वो मैन्युफैक्चरर को बताते हैं कि आई नीड दिस मच ऑफ अमाउंट. तो मैन्युफैक्चरर उसके अकाउंट, और एक होलसेलर थोड़ी होता है एक मैन्युफैक्चरर के नीचे, देयर आर थाउजेंड्स. आपकी कंपनी कितने एरिया को कवर कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपके होलसेलर होंगे. अगर वो सिर्फ नॉर्थ को कवर करती है तो सिर्फ नॉर्थ में जितने भी आपके स्टेट्स हैं वहां पर अलग अलग एरियाज में कितने होलसेलर्स हैं. इफ इट इज कवरिंग साउथ, देन साउथ में जितने स्टेट्स हैं और हर स्टेट में कितने होलसेलर्स. लाइकवाइज इफ इट इज कवरिंग वेस्ट एंड ईस्ट ऑल्सो तो उतने. यानी कि एक जो मतलब की फर्म है इन सब से अपने डिमांड को लेता है. Wholesalers collect small orders from a number of retailers, pass on the pool of such orders to the manufacturers and make purchase in bulk quantity. यानी कि जो प्रोड्यूसर है, based on the demand that they have got, they produce. Second, bearing the bearing the risk. The wholesale, क्योंकि वो तो खरीद लेते हैं भाई, this is only a assumption. अब जरूरी थोड़ी है कि अगर रिटेलर ने बोला मुझे 100 क्विंटल चाहिए तो वो 100 क्विंटल खरीद के जाएगा. हो सकता है कि वो सिर्फ 50 खरीद के जाए, और वो जो बाकी 50 है वो हो सकता है कि होलसेलर के पास वेस्ट हो जाए. तो ही इज टेकिंग दैट रिस्क. द होलसेलर मर्चेंट्स डील इन गुड्स इन देयर ओन नेम, टेक डिलीवरी, कीप द गुड्स इन लार्ज लॉट्स. In the process, they bear variety of risk.
such as fall in price, theft, pilferage, spoilage, fire, ऐसे कई चीजें हो सकती हैं. That means मैन्युफैक्चरर को का बर्डन कम हो गया है. अगर होलसेलर बाय करके चला गया है तो अब उस उतने सामान की जिम्मेदारी होलसेलर की है. फाइनेंशियल असिस्टेंस, sometimes they make the cash payment and sometimes they even give the advance. The wholesaler provide financial assistance to the manufacturers in the sense that generally they make cash payment for the goods purchased. To that extent, the manufacturer need not block their capital, and sometimes they also give advance money to the producer for bulk. जैसे अभी दिवाली का सीजन है, राइट? तो दिवाली के सीजन में सबसे बड़ी चीज होती है कि जो ये मतलब कि हमारे जो होलसेलर्स होते हैं उनकी काफी दे आर हैविंग गुड, क्योंकि दे आर द वन जो अंदाजा लगाते हैं कि इस साल कौन कौन सी चीजें बिकेंगी. दे गेट द डिमांड फ्रॉम द रिटेलर्स. ऑन द बेसिस दे ब्लॉक द मनी, गिव इट टू द मैन्युफैक्चरर्स, सामान बनवाते हैं एंड देन दे सेल आउट. Expert advice. As wholesalers are in direct contact with the retailers, they are in a position to advise a manufacturer कि भाई कस्टमर्स की क्या चेंज है, कस्टमर्स क्या प्रेफर कर रहे हैं, व्हाट इज द मार्केट कंडीशन, व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज, सब कुछ. सो दे गिव दिस टू द मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर इसी के थ्रू, इसी सर्वे के थ्रू जो है पता लगाता है द मार्केट कंडीशन. हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन. मार्केटिंग का मतलब हो जाता है बच्चे, नाउ मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग. मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग, याद रखना. अ वेरी बिग चैप्टर इन क्लास 12. मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग. मार्केटिंग का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द मार्केट यू नीड टू फाइंड व्हाट पीपल वांट. लोगों को आजकल क्या जरूरत पड़ती है. एक सिंपल एग्जांपल. I know you all are very active on all the social platform, ठीक है ना. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है. आजकल तो हम लोग AI यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इफ यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट से ऑन फ्लिपकार्ट और ऑन एनी सोशल मतलब एनी प्लेटफॉर्म से आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है. आपको एक बहुत सुंदर ड्रेस पसंद आई, आपको कोई बॉयज को कोई मतलब कि हेडसेट पसंद आया. आप एक बात नोटिस कर, अगर आपने नहीं किया तो करना, और अगर आपने किया तो यू कैन अग्री. when you are scrolling any social media like FB, Insta, Snap, मतलब मेरे को Snapchat का तो नहीं पता because I don't have any account. FB I used to have, last year I closed it. Insta पर मैं अभी भी बहुत एक्टिव हूँ. तो यू विल सी कि जिस चीज को खरीदने के लिए आपने गूगल में डाला था वो प्रोडक्ट्स आपके अवेलेबल हो रहे हैं ऑन इंस्टा. दिस इज मार्केटिंग. फाइंडिंग आउट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल. फाइंडिंग आउट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग का मतलब होता है कि लोगों को क्या चीज चाहिए, आजकल वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, एंड देन डिजाइनिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को डिजाइन करना एंड देन प्रोड्यूसिंग इट. तो ये जो पूरा एक चैनल है ना, ये आपका रिटेलर बताता है भाई आजकल लोग ये चीज मांग रहे हैं. देन व्हाट इज द करंट सिचुएशन, इन सबको हम लोग देखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं. दैट इज व्हाई न्यू थिंग्स कम इनटू द मार्केट. The wholesaler take care of distribution, who in turn sell in these goods to number of customers. This relieves from many marketing activities and enable them to concentrate only on the production activity. Facilitate production continuity. That is very मतलब कि obvious. भाई ये तो बहुत obvious है कि आपका जो जैसे जैसे आपके पास डिमांड आएगी उतना उतना प्रोड्यूस करोगे. The wholesaler facilitate continuity of product activity throughout the year by purchasing the goods as and when they are produced and storing them till they are in demand. Storage.
It's not that every distributor is going to do all these functions, but these are the functions which are normally done by them. ये भी याद रखना class level. Wholesalers take delivery of goods when these are produced in factory and keep them in their own godowns. This reduces the burden of manufacturers of providing storage facilities for finished product. They thus provide time utility. So these are the one. And now as per your syllabus, as per class, these all are very important. You should always remember 4 to 5 points of this. ये जरूरी है. Now what are the services they are giving to the retailers? First of all, same. भाई वहां से सामान लिया है तो रिटेलर को, अब रिटेलर कौन? Now let us come to the part who is retailer. What is the difference between a wholesaler and retailer? I told you this thing in the summary class also. Wholesaler जो है, he will be dealing only with a particular good or similar goods like चावल. तो चावल है, होलसेलर है, तो चावल का मतलब उसके पास जो आपके पुन्नी राइस है वो भी होगा, आपके पास जो सेला राइस है वो भी होगा, बासमती भी होगा और आपके पास परिमल भी होगा. हो सकता है चावल के साथ वो कोई दाल या चावल के साथ वो गेहूं या मिलेट कुछ रखता होगा, राइट. लेकिन जो रिटेलर होगा उसके पास जो भी जिस तरीके की उसकी दुकान है, से मैं तो अभी सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेन्स, तो उसके पास चावल भी होगा, दाल भी होगा, उसके पास मतलब कि मिलेट भी होंगे, उसके पास सब कुछ होगा. और उसके पास एक कंपनी का नहीं होगा, उसके पास हर वो कंपनी का होगा जिससे वो सामान थोड़ा थोड़ा खरीद रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कंज्यूमर आकर कब मांग ले. आपने रखा हुआ है ऑफ मतलब कि से आपने जो है इंडिया गेट का रखा हुआ है, लेकिन कंज्यूमर आके कहता है मुझे पतंजलि का चाहिए, देन. इसीलिए रिटेलर वो होते हैं जिसके पास पतंजलि के प्रोडक्ट भी होंगे, उसके पास मतलब कि फॉर्चून के भी होंगे, उसके पास कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी होंगे, उसके पास अदर कंपनी के भी होंगे. इसीलिए रिटेलर जो है लेसर अमाउंट में, जितना उसके पास उसकी दुकान है, जितना वो शेल्फ कर सकता है उतना, एंड जितना उसको लगता है डिमांड होगा उतना ही सामान वो रखता है. मे बी एक कंपनी का ज्यादा रखे और एक कंपनी का कम रखे. whereas wholesaler will be buying it at bulk, क्योंकि उसके पास वही आइटम मिलेगा. तो इसीलिए रिटेलर जब होलसेलर के पास जाता है खरीदने के लिए, it is a wholesaler who gives the service by providing the goods whenever the retailers need. Retailers have to maintain adequate stock of varied commodities. जो अभी मैंने आपको बताया, उनके पास एक commodity नहीं होती है, अलग अलग होती है. The wholesalers make the products of various manufacturers readily available to the retailers. This relieves the retailers of the work of collecting goods from several producers and keep big inventory of the same. उनको जितना चाहिए उन्होंने जो है, they have the tie up with those wholesalers, so they would be regularly buying it. मे भी हो सकता है रिटेलर जाके बाय करके भी आए या फिर होलसेलर उसको सेंड भी कर दे. मार्केटिंग सपोर्ट रिटेलर को कैसे देता है? The wholesaler performs various marketing function and provides support to the retailer. They undertake advertisements, sales promotion to induce customers to purchase the goods. The retailers are benefited as it helps to increase the demand for various new products. मान लो प्रोड्यूसर ने एक मतलब कि होलसेलर ने एक नए प्रोड्यूसर के साथ में टाई अप किया है, या जो आपका एग्जिस्टिंग है उसने एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है. अब वो प्रोडक्ट हम तक कैसे आएगा? कंज्यूमर तक. अब रिटेलर कैसे लेकर आएगा? उसे क्या पता है कि कंज्यूमर उस चीज को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, क्योंकि रिटेलर्स कम हो, मतलब उनका जो वो होता है प्रॉफिट होता है वो कम होता है. तो होलसेलर्स क्या करते हैं अपने मतलब कि विद देयर ओन, दे ट्राई टू यू नो गिव दिस एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए. दे मे बी पुटिंग अ कियोस्क, they may be asking a person to stand, grant of credit. Sometimes the wholesaler
जो है the retailer is not able to buy on cash, so they extend credit facility to the general regular customers. यहाँ customers हम नहीं है बच्चे, यहाँ customers means the regular retailers. मे बी अ रिटेलर, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली का मंथ है, तो नॉट ऑल द रिटेलर्स हैव द मनी, सो मे बी सम ऑफ द रिटेलर्स मे ऑल्सो टेक दिस. वो लोग ये काम कर सकते हैं कि वो लोग जो है कर्जे पे ले ले, क्रेडिट पर ले ले, फिर जब सामान बिक जाए तो होलसेलर को पैसे दे देते हैं. एंड दिस हैपेंस. दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन ट्रेड क्रेडिट. Specialized knowledge. The wholesaler specialize in one line of product and know the pulse of the market. Pulse मतलब उनको मार्केट की नब्ज पता है, क्योंकि वो तो उसी एक चीज पर डील कर रहे हैं. They pass on the benefit of their specialized knowledge to the retailers. They tell them about the new product, their use, quality, etc. They advise them on the decor of retail outlet, allocation of shelf space, demonstration of certain product. मतलब वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तो अपने अपने मतलब की जो दुकान है उसमें इस तरीके से इसको डिस्प्ले करेगा तो लोगों की जाएगी. अगर आप देखोगे तो जो प्रोडक्ट्स आपके होते हैं लाइक मैगी वगैरह, सॉस वगैरह, देन आपके जो मतलब ऐसे जो उस उनको आप देखोगे ना, दे आर शेल्फ्ड इन सच अ मैनर कि जाते ही हमारी आंख सीधा उसी पे जाती. वी विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर द चिलीज आर, लेकिन हमको मैगी सामने ही दिख जाती, चिप्स हमें सामने दिख जाते हैं. दिस इज हाउ द मैन्युफैक्चरर्स, द होलसेलर्स हेल्प देम. रिस्क शेयरिंग. क्यों? बल्क में खरीदते हैं एंड स्मॉल क्वांटिटी में देते हैं. बीइंग एबल टू परचेज मर्चेंडाइज. मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स. मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स. रिटेलर्स आर इन अ पोजिशन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ स्टोरेज, पिल्फरेज, ऑब्सोलेंस, रिडक्शन इन प्राइसेस एंड डिमांड फ्लक्चुएशन. मतलब कि उनको उतना ही खरीदना होता है तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है. जो नुकसान होता है वो होलसेलर का थोड़ा ज्यादा होता है. बट ऑल दीज बेटा मतलब कि ऑल्सो is मतलब कि based on the link they have, the thing they are sharing with each other, the mutual understanding they have. मतलब what are the terms of trade, that depends, but ये generalized है. Now comes retailer. A retailer is a business enterprise that is engaged in the sales and goods directly to the ultimate consumers. हम जिस भी दुकान से सामान लाते हैं, whether it is मतलब कि जिसको हम रिलायंस कहते हैं या कुछ भी कहेंगे, they are all retailers. We are not buying it from the factory. फैक्ट्री के आउटलेट से खरीदते हैं, फैक्ट्री से नहीं खरीदते. The retailer normally buys goods in large quantities from the wholesalers and sells them in small quantities to the ultimate consumer. आप होलसेलर के पास जाओगे तो उसके पास टन में, क्विंटल्स में होंगे. रिटेलर के पास भी उसमें टन या उसमें, लेकिन जब हम खरीदते हैं तो हम किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो ये हमारा स्मॉल क्वांटिटी है. So they buy the goods and then they sell them in the small quantity. The retail represents the final stage in the distribution where goods are transferred. अभी ऊपर आपको मैंने बताया था ना, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर. तो जो रिटेलर है वो लास्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास आ जाता है. Retailing is thus that branch of business which is devoted to the sales of goods and services to the ultimate consumers for their personal and non-business use. जहां हम उसे consume करते हैं, that is why we are called as consumers. This may be different way of selling, personal, on phone, through vending machine, जो आपके कियोस्क है इन द रेलवे स्टेशन एंड इन द एट द एयरपोर्ट, वो भी आपका रिटेल है. इन अ स्टोर, एट द कस्टमर्स हाउस, एनी अदर प्लेस. Some of the common situation we example is are the sale of ball pens, some magic medicine or book of jokes in the roadway buses. जब हम बसेस में आते हैं तो वो आके बेचते हैं ना,
5-10 रुपए का 5 ले लो, ऐसे करके. द सेल ऑफ कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट पाउडर, डोर टू डोर. आजकल तो आई डोंट नो, बट नॉर्मली वो आते हैं. हमारे कंपनी ने इसको लॉन्च किया है. सेल्स ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जी वाला. बट as long as the goods are sold to ultimate consumers, these will be treated as retail spend. Thus, irrespective of how the products are sold or where the sale is made, it is called as retailing. चाहे वो छोटा सा, मतलब कि पेवमेंट पर दुकान हो, या फिर आप बड़े से मॉल से लेकर आ रहे हो, जहां हम कम मात्रा में हम ले रहे हैं कंज्यूमर, उसको हम रिटेलिंग बोलते हैं. A retailer performs various functions like distribution of goods and services, purchasing it from the wholesaler, फिर उसको स्टोर करना, फिर उसको, मतलब कि जब तक वो बिकता नहीं है उस रिस्क को बियर करना, collecting the information, promoting the sales, credit to the buyers, not in everywhere, but at some places we have to. So now what are the services? Services of wholesalers and services of retailers to manufacturers and to consumer वाला question तो करना ही है आपको. By hook or crook from this chapter, this is very, 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 very important. It can be direct or it can be indirect. Now, what are the services that a retailer gives to a manufacturer or to the wholesaler? कई बार तो ऐसे कंपनीज भी हैं जो रिटेलर्स को भी आजकल दे रहे हैं. A retailer's most important service is to provide help the distribution of their product by making them available to the final consumers. भाई जो भी सामान बनता है किसी भी फैक्ट्री में बनता है, हम तक आने वाला जो है वो रिटेलर है. सो दे प्रोवाइड प्लेस यूटिलिटी, यानी कि हम तक पहुंचाना. प्लेस यूटिलिटी मतलब हम तक पहुंचाना. पर्सनल सेलिंग, जहां आपकी छोटी दुकानें हैं वहां पर देयर इज पर्सनल सेलिंग. द रिटेलर रिलीव द प्रोड्यूसर ऑफ दिस एक्टिविटी एंड ग्रेटली हेल्प. अब प्रोड्यूसर डायरेक्टली आके नहीं बताता इस प्रोडक्ट में ये है. यस, दे गिव द एडवर्टीजमेंट, लेकिन जो रिटेलर होता है वो कहीं ना कहीं पर्सनली इन्वॉल्व होता है. इनेबल लार्ज स्केल ऑपरेशंस, क्योंकि कई रिटेलर्स होते हैं एक होलसेलर के नीचे. तो कई रिटेलर्स मिलकर होलसेलर को देते हैं अपना डिमांड, एंड कई होलसेलर्स जो है मिलकर मैन्युफैक्चरर को देते हैं. यानी कि स्कैटर्ड ओवर लार्ज एरिया, छोटी छोटी चीजें बड़ा बन जाती हैं. enabling large scale operation. I'll explain this like this. Say it is one, मतलब कि एक there is one, this is one area. ये एक एरिया है, इसमें आपके 8 आपके जो है we are having retailers, right? This is area number A. अब इसी तरीके से आपके जो है we are having एरिया नंबर B. अब हमारे पास एरिया नंबर B है, वहां पर we are having 6, राइट. और अब ये सारे मिलकर, ये सारा मिलकर A एंड B मिलकर हमारे पास हो गए 14 रिटेलर्स. यानी कि एक होलसेलर के नीचे 14 रिटेलर्स हैं, और ये 14 रिटेलर्स से डिमांड लेकर वो मैन्युफैक्चरर को देता है. दैट मीन्स एक मैन्युफैक्चरर के लिए दिस इज व्हाट वी से enabling लार्ज स्केल ऑपरेशन. और ऐसे एक होलसेलर नहीं, ऐसे 100 होलसेलर्स होंगे. On account of retailer services, the manufacturers and wholesalers are freed from the trouble of making individual sales. They enable them to operate at relatively large scale and therefore concentrate on their activities. यानी कि उनको ये काम नहीं करना है, ये जो रिटेलर्स है ये काम कर रहे हैं बेचने, और जितना बेचेंगे उतना उनका डिमांड होगा. कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बायर्स, जैसे हम लोग जाकर बोलते हैं भाई ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था. मे बी अगर 10 में से 3 जने बोलते हैं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था,
So then the retailer will give this feedback to the wholesaler. यानी कि मार्केट इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम द कंज्यूमर एक चैनल से वो पहुंचता है टू द मैन्युफैक्चरर. वी मे नॉट बी डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग द मैन्युफैक्चरर कि भाई आपका प्रोडक्ट का मतलब नहीं था, बट वी कैन टेल द रिटेलर. As retail remains in the direct and constant touch with the buyers, they serve as an important source of collecting market information, taste, preference, attitude, and this is how it passes. Helps in promotion, अपने उसमें सुंदर से बना के रखना, कुछ बेनिफिट्स बताना. कई बार तो रिटेलर्स अपने प्रॉफिट को कम करके इवन दे सेल आउट. From time to time, manufacturers and distributors have to carry on various promotional activities in order to increase the sales. For example, they have to advertise, offer short-term incentives, free gift, sales. तो जो retailers होते हैं, they participate. Services to the consumers. The next is what are the services they are giving to the consumers? Regular availability. It is the nearby shop from where we are going to avail this. The most important service of a retailer is to maintain regular availability of various products. यानी कि जब हमें चाहिए होता है तो we are able to. अब मैन्युफैक्चरर को क्या पता है कि क्या चाहिए या नहीं चाहिए. So manufacturer से wholesaler, wholesaler से retailer, and then it comes to us. New products information, maybe वो display करता हो या through personal selling effort हमें बताता हो. They provide about the arrival, special feature. अभी रुकिए आप, अभी बढ़िया वाला मतलब कि आने वाला है, उसे खरीदना. They tell you this thing. They give you these kinds of expert advice. Sometimes they tell that इसका feedback इतना अच्छा नहीं, आप ये वाला खरीद के लेकर जाओ. Convenience in buying. भाई हमें उतना ही चाहिए ना जितना हम लेंगे. As I said, I may require only 5 kilo. I may require 10 kilo. So retailer generally buy goods in large quantity and sell these in small quantities according to the requirement of customers. Normally they are situated very near to residential areas and remain open. So जो customers होते हैं, they can buy it according to their requirement. Wide selections. सबसे ऊपर सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था दैट होलसेलर तो एक या दो लाइन में एक्सपर्ट होता है, लेकिन रिटेलर के पास अलग अलग कंपनीज की अलग अलग चीजें होती हैं. So that means when we are going to the shop, we can see, भाई हाँ, we are having Hindustan Unilever also, we are having Patanjali also, we are having other. तो हमारे पास selection के लिए we are, and this is retailer who keeps it. Retailers generally keep stock of variety of products of different manufacturers. This enables the consumers to make their choice out of wide selection of goods. After sales service. This means about जैसे home delivery, sometimes supply of spare parts, sometimes छोटे मोटे मतलब if there is no manufacturing defect, if there are certain generalized है, so attending to the customers. So this is an important factor in the buyer's decision for repeat purchase of the product. हम कौन से प्रोडक्ट को हमेशा खरीदते हैं, जिसका we know that we would be getting a proper service. Provide credit facilities. In the plastic world, जहां आजकल हम प्लास्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, वहां पर तो वी आर यूजिंग द क्रेडिट कार्ड्स, बट यस देयर आर लोकल शॉप्स जहां पर आज भी जो बायर्स होते हैं दे बाय एंड दे मे पे द मनी लेटर, मे बी 1 month, 15 days, it depends. The retailer sometimes provide credit facilities to their regular buyers. जैसे होलसेलर उनको देता है, वो भी अपने कस्टमर्स को देते हैं. This enables the latter matlab the consumers, to increase their level of consumption and thereby increase their standard of living.
उनको लगता है चलो यार अगर हमको मतलब कि 1 महीने बाद देना, हम खरीद लेते हैं अभी. So this is how these are some of the services that the retailers and the wholesalers provide. So in today's session, we have learned what is internal trade, how it is different from international trade, that is external trade, जो हमारा next chapter है. External trade मतलब outside the country, and internal trade मतलब within the boundary of the country. And then we have learned that within the boundary of the country we have wholesalers and retailers. आपको मैंने बताया the supply chain from the manufacturer it goes to the wholesaler. Wholesaler जो होगा वो एक या दो line of products को ही लेगा, whereas जो retailer होगा वो अलग अलग wholesaler से, मतलब ये इंसान जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वो पतंजलि का, वो डाबर का, वो उसका, तो वो सबसे खरीदेगा और अपने दुकान में रखेगा. अब वो जो दुकानें हैं वो कौन सी है, मतलब वेदर इट इज एन आइटिनरेंट, वेदर इट इज मतलब की फिक्स शॉप, वेदर इट इज मतलब की अ डिपार्टमेंटल स्टोर और अ चेन स्टोर, ये हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ये हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. वो कैसी दुकानें होती है वो अलग है, बट इट इज द रिटेलर हु इज इन टच विद द कंज्यूमर्स. अल्टीमेट कंज्यूमर्स हम जो होते हैं वो हम रिटेलर से खरीदते हैं. So this is a supply chain, and internal trade plays a major role. क्योंकि wholesalers जो होते हैं they are the one who are in constant touch with the government. ये लोग जो है through FICCI, मतलब आपके जो associations हैं उनके through they are in touch with the government. So they are the one who are negotiating in terms of any kind of assistance, any kind of tax benefits. और इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे कंट्री का ओवरऑल बिजनेस का जो साइकिल है वो चलता है. And that is why internal trade is also as important as an external trade. So that is what we have read today. I'll not be continuing this session today. This is because जो हमारा next session है that is all about the retailing types of retailing trade. यानी कि आपके पहले हमारा जो आएगा वो आएगा itinerant, यानी कि the one who goes from one place to another. आपके पेडलर्स भी हैं, आपके हॉकर्स भी हैं, आपके जो मार्केट ट्रेडर्स हैं, संडे मंडे ट्यूसडे मार्केट वाले, स्ट्रीट ट्रेडर्स यानी कि जो पेवमेंट पे लगाते हैं, चीप जैक्स हैं, वो भी आपके. देन द फिक्स शॉप्स, जो घरों के आसपास में आपके छोटे छोटे से दुकानें या बड़ी दुकानें, जनरल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, सेकंड हैंड स्टोर, वन सिंगल लाइन स्टोर, ये भी आपके शॉप्स हैं. देन आपके लार्ज के अंदर डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर. So these are the kinds of shops we have under retail. And then last but not the least we would be having is the concept of GST, why it was implemented, what are its main objectives, right? So that would be the next part that we would be doing. So this is for today. Bye for today.